हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं। ये चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में से चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम द रिवाइज सिलेबस। अब जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो सिलेबस न्यू आया है रिवाइज सिलेबस, उसमें से यूनिट नंबर 11 एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसका पहला लेक्चर हम आज लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। यस, so before moving in detail about this chapter, I would like to tell you what we are going to learn in this chapter. See, our chapter is enhancement in food production. So I would like to tell you what is meant by enhancement. Enhancement means increase. Yes, enhancement it means increase. तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन द नॉर्मल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ फूड मटेरियल। इंक्रीज इन द quantity and quality of food material is called enhancement in food production. And to explain this chapter in detail, we have some topic front of us. Yes, the topic which we are going to learn in this chapter will be first topic today I am going to teach you, that is introductory part of the chapter, and then plant breeding in detail. Yes, and next lecture will be based on, means next topic of this chapter is applications of plant breeding in detail. Then we have a tissue culture and applications of tissue culture, and then we have a single cell protein that we call SCP. Then we are starting with a new content in the same chapter, that is animal husbandry. Animal husbandry simply it means how to care the animal, because these animals are very important for giving food material to us. Therefore animal husbandry means to care the animal. Now in that chapter, in that sub topic, we will discuss management of farm and farm animal, then dairy management, poultry management, animal husbandry means animal breeding, and then we will discuss apiculture, bee culturing, and then we will discuss you can say fishiculture or you can say fish farming. Yes, it also include lobster and prawn. Then we will discuss lake culture and finally sericulture. Then we will enter into the new subtopic, that will be microbes in biology of human welfare, or you can say microbes in human welfare. That is one and the same thing. In that we will see six subtopics, like first microbes in common household production, then microbes in industrial production, then microbes in sewage treatment, then microbes in biogas production, and then microbes as a biocontrol agent, and finally microbes as a biofertilizers. So all these subtopics are included under single unit, that is unit number 11, enhancement in food production. So we are going to begin with the introduction of this lesson. Let's begin in detail. Introduction to the chapter. We know that enhancement concept which explore the meaning of enhancement is nothing but increase the production. हम बेसिकली फूड मटेरियल की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को जब हम इंप्रूव करते हैं तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं एनहांसमेंट. Now I would like to tell you, think about the World War II. So World War II was took place in 1939 to the 1945, and in that period maximum explosive material were used, and they have damaged the number of a crop on the world. वर्ल्ड वॉर सेकंड के दरमियान इतने सारे एक्सप्लोसिव वेपन यूज किए गए थे कि पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट प्लांट मतलब जो फूड प्रोडक्शन था उसमें काफी गिरावट आ गई थी. लेकिन उस पीरियड में हमारे पास एक टॉपिक था, हमारे पास एक नई कंसेप्ट थी, प्लांट ब्रीडिंग. और प्लांट ब्रीडिंग के कारण हमने पूरी दुनिया का पेट भर सके, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी सिर्फ नहीं बढ़ाई लेकिन उसकी क्वालिटी भी बढ़ाई. So that is why we are going to learn the plant breeding and tissue culture like topic in this lesson, where we are going to discuss about enhancement in food production. Food production को बढ़ाना मतलब enhancement करना. Yes guys, so this is the basic introductory one. I would like to tell you guys, plant breeding
tissue culture and single cell protein. These are the three main subtopics inside this first, that is animal enhancement in food production. So we are going to begin with the first topic of our lesson, that is a plant breeding. I'll tell you plant breeding in detail, and then also I will explain you what are the applications of a plant breeding. So let's start. So dear students, now we are going to discuss about plant breeding in detail. So let's begin. First of all, when we think about plant breeding, so one question comes to our mind that what is plant breeding? ठीक है? तो अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करें तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है. अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ. जस्ट इमेजिन दैट वी हैव अ वन प्लांट हियर, यस, and one plant here. This plant is for good quality of wheat, and this plant is for high quantity of wheat. Yes, मतलब हमारे सामने दो प्लांट हमने ग्रो किए हुए हैं. एक प्लांट ऐसा है जिसमें वीट की क्वालिटी काफी बेहतर है, लेकिन क्वांटिटी इतनी नहीं है. क्वांटिटी का मायने अगर देखें तो काफी कम क्वांटिटी आती है, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन है. बेहतरीन क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो एसिड ये काफी ज्यादा मात्रा में है. मतलब ये प्लांट की, इस वीट की क्वालिटी काफी अच्छी है. अब ये वाला अगर प्लांट देखें तो इसकी क्वांटिटी काफी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी काफी कम है. मतलब इस वाले प्लांट में प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड ये काफी कम है, लेकिन क्वांटिटी काफी ज्यादा है. ठीक है. वी हैव ग्रोन टू प्लांट फ्रंट ऑफ अस. फर्स्ट प्लांट है व्हिच हैज अ हाई क्वालिटी. हाई क्वालिटी मींस प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल are more in this plant, but quantity is very less. But if you compare that plant with this one, so this plant have a more quantity but not with a good quality. It means this plant is more in quantity but quality is very poor. So we are growing these two different plant in a two different places, and we have to take care of this both the plants. Now, if I give you one idea, if I give you one technique by which you can mix both this plant, merge it together them and produce a new plant. Now this new plant will have good quality and high quantity. Now this plant has good quality and high quantity of wheat. Yes, both features together in single plant. This feature, this property, this technique is called plant breeding. तो plant breeding क्या है? Plant breeding एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो अलग अलग प्लांट के अंदर पॉलिनेशन परफॉर्म करके उनको एक प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो प्लांट ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों सिलेक्टेड प्लांट्स के, दोनों सिलेक्टेड पेरेंट्स प्लांट्स के कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ जाएंगे. इस टेक्निक को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग. डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार. प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट कन्वेंशनल मेथड. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट द कन्वेंशनल मेथड बाय विच two different variety of plants are hybridized with each other. Two different variety of plants are hybridized with each other and produce a new variety or produce a new type of a plant which have a characteristics of both the plants, both the selected parents plant. This technique is called plant breeding, and plant breeding is one of the best technique by which you can bring many characters into the single plant. I'll tell you, see one concept called germplasm. So what is meant by germplasm? When someone is learning about plant breeding, they must know about the concept called germplasm. अगर आप plant breeding पढ़ रहे हो, germplasm नहीं पता है तो आप अधूरे हो plant breeding में. आपको germplasm पता होना चाहिए. germplasm क्या है? See, many characters present in single plant is known as
germplasm. Many character present in single plant is called germplasm. अब आप देखिए इस वाले प्लांट में एक ही कैरेक्टर था, that was a quality of plant. Now this plant was having only one character, that was a quantity of plant. But compared to both this plant have a two character, high quality as well as high quantity. So we can call this plant as a germplasm plant because it has a two characters, because it has a two different variety of a genes. So that this plant have a two character. Now just imagine this plant have a five character, like a high quality of wheat, high quantity of wheat, disease resistant variety of wheat, fast growth of wheat, and you can say soil fertility of a wheat. Single plant having a five character. So this will be the ideal example of germplasm. अगर किसी एक की हम कौन से टीचर को हम आइडियल टीचर मानते हैं, जिनकी लैंग्वेज हमें अच्छी से अच्छी हो, मतलब जो हमें हमारी लैंग्वेज में इजीली समझा सके, जो चीजें हमारे ब्रेन तक नहीं जाती है वो हमारे माइंड तक, हमारे हार्ट तक इजीली पहुंचा सके, और टेक्स्ट बुक का हार्ड से हार्ड कंसेप्ट हमें सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा सके। और एक अच्छी क्वालिटी टीचर की ये होती है कि वो ऐसा पढ़ाए कि हमें काफी टाइम तक उस चीज को याद रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही समझा रहे। जैसे अगर मैं आपको ये नीट का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ या तो स्टेट बोर्ड का पढ़ा, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है तब तक आपको याद रही है मेरी ड्यूटी, लेकिन मैं ऐसा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा कि ये आप लाइफ टाइम मरते दम तक ना भूलो, क्योंकि सिर्फ डिग्री आने तक या तो एग्जाम पास होने तक हमें चीज याद रखनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हमें हमेशा के लिए उस चीज के बारे में नॉलेज मिले। तो एक टीचर का ये काम है कि उनको स्टूडेंटों को ऐसा पढ़ाए कि हमेशा उनको याद रख सके। सो हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं। तो वो टीचर में एक आइडियल क्वालिटी होती है जिसमें काफी सारे कैरेक्टर होते हैं। सेम वे germplasm एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें एक प्लांट के अंदर काफी सारे कैरेक्टर होते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन टू द प्लांट ब्रीडिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग। सो आई टेल यू देयर आर 5 steps of a plant breeding. Let's talk one by one. So we are going to discuss the steps of a plant breeding. So first step of plant breeding is collection of variability. Now what does it mean by variability? Variability का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट कौन से होशियार हैं, कौन से ज्यादा टैलेंटेड है, तो मुझे टेस्ट कितने स्टूडेंट की लेनी चाहिए? उन 2 की ही नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे 50 to 100 स्टूडेंट जितने मेरे क्लास में सबकी टेस्ट लेनी चाहिए, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कौन से 2 बेस्ट हैं। सेम वे अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लांट है तो हमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 प्लांट है ना। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें 5 अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर वाले प्लांट लेने हैं, और उन 5 प्लांट में से हम 2 प्लांट को सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट्स फॉर क्रॉसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। So collection of a variability is the first step of a plant breeding, in which we are selecting different variety of a plant, and out of this different variety of plant we will select only 2 different plant for the purpose of crossing. So first step is collection of variability. Let's start. So in this step we are selecting 5 different variety of plant. So first plant I am showing you. So first plant is good quality. The first plant is for the good quality of wheat plant. I'll show you all the wheat plant only. Second plant, you can say high quantity of wheat. Third plant, disease resistance. Third plant is disease resistance. Fourth plant, is soil fertility. And fifth plant is fast growth. So front of us we have a 5 different variety of plant. We have a 5 different variety, no? That's why we called it as a variability. Variability means changes among the differences. Yes, these are the changes among the, you can say, selected. So these are the different 5 selected plants, and what is the changes features among them, that will be called variability. Now
plant number 1 has a good quality of wheat, but this plant have only good quality, not all these features. Plant number 2 have a high quantity of a wheat, but not high quality, neither this feature. Disease resistant planting has the ability to protect the plant body from number of diseases. Generally farmers are getting a harm, farmers are getting a disadvantage, farmers are getting loss in the agriculture just because number of plant diseases are there, either due to bacterial, viral, protozoal, fungal, etc. etc. Soil fertility is the ability of a plant to survive in any kind, to adjust in any kind of a soil. So that's called soil fertility. Fast growth, this is the plant which shows very short period of a lifespan. Like suppose these plant are requiring this plant are requiring 3 months for the production of a fruit, production of a crop. So this plant will give the crop in just only 1.5 months. So fast growth. हमने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में 5 अलग अलग प्रकार के प्लांट लिए हुए हैं। इस वाले प्लांट में क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वांटिटी, डिसीज रेजिस्टेंट, सॉइल फर्टिलिटी, फास्ट ग्रोथ कुछ भी नहीं। इस वाले प्लांट में क्वांटिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी भी नहीं, 9 ये फीचर्स हैं। डिसीज रेजिस्टेंट वाले प्लांट में क्वांटिटी क्वालिटी है, लेकिन मेन फीचर इसका जो है वो है डिसीज रेजिस्टेंट। फार्मर को प्लांट में, एग्रीकल्चर में लॉस क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर प्लांट में कीड़े मकोड़े, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये वाले प्लांट हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज ये डिसीज रेजिस्टेंट, पावर, इनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा होती है प्लांट की। सॉइल फर्टिलिटी, ये वो वाले प्लांट है जो हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, और ये वो वाले प्लांट है जिनकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है। तो ये है फर्स्ट कैरेक्टर। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ यू कैन से कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्टेप्स। तो हमने पहली स्टेप देखी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब आप ये देखिए कि हमारे सामने 5 प्लांट है। अब इन 5 प्लांट में से हमें 2 प्लांट को सिलेक्ट करना है एज अ पेरेंट्स। तो हम क्या करेंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। Now just imagine I have a 4 different color of marker, black, red, green and blue. If I think that which color I should use for writing to teach you, so I basically judge that there is too much light in our room. Yes, so green color will not be able to observe properly, red will be slightly, blue color will be it will be fair, but black color will be more attractive. So black color हमें ज्यादा दिखेगा और उसके बाद blue color दिखेगा। तो मैं अभी पॉइंट जो है हाईलाइट ब्लू से कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो मटेरियल है वो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने इवेल्युएशन किया। सेम वे हमें प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए इन 5 प्लांट में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो हमें कौन से 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करना है? वो हम क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू माय यू कैन से नॉलेज, आई थिंक सो आई शुड क्रॉस between high quantity of plant and disease resistant plant. Why it is important? Just imagine that Indian population or world population is very high. High quality, if you cross high quality with a disease resistant, so you will not get good quantity. If you cross high quality with a high quantity, so there will be more loss due to the disease resistant. So we should select the 2 characters which are nowadays very mandatory. So these 2 characters are high quantity and disease resistant. अगर हम हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में क्रॉस करें तो प्लांट को बीमारी हो सकती है, क्योंकि डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर नहीं उसमें। हाई क्वांटिटी मतलब हाई क्वालिटी और डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉस करें तो लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं आएगी। तो हमें फिलहाल हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? हाई क्वांटिटी और डिसीज रेजिस्टेंट। दिस 2 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल सिलेक्ट द प्लांट नंबर 2 and we will select the plant number 3rd. So plant number 2 is for the high quantity and plant number 3rd is for the high quality. So we have selected 2 different plant by the step called evaluation and selection of parents. मैं थर्ड वाली स्टेप वहां पे बताता हूं आपको, क्योंकि थोड़ी लंबी स्टेप है थर्ड वाली स्टेप। यस, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन amongst selected parents। अभी हमें इस स्टेप में क्या करना है?
हमने जो दो सिलेक्टेड पेरेंट्स सिलेक्ट किए हुए हैं, मतलब जो दो पेरेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, हमें उनके अंदर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करनी, मतलब उनके अंदर आपस में पोलिनेशन करना। लेकिन ये पोलिनेशन नेचुरल पोलिनेशन नहीं, ये आर्टिफिशियल पोलिनेशन है। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल करते थे, पोलन ग्रेन, रेड फ्लावर के पोलन ग्रेन को व्हाइट फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर कर देते हैं बाय फोर्सेप टेक्निक। तो हमें भी ये ऐसे ही टेक्निक करनी है, ठीक है? तो हम करते हैं अभी। यस, अब ये देखिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग्स द सिलेक्टेड पेरेंट्स इज द थर्ड स्टेप ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग इन व्हिच we are allowing the artificial pollination between these two selected plants. We are actually not allowing, we are on self doing the artificial pollination between these two selected plants. But there are some important things. Just like suppose if both selected plants are bisexual, then अगर हमने जो दो प्लांट सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर ये दोनों के दोनों प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, अब ये वाला प्लांट आप समझ लीजिए, दिस इज द वन प्लांट, यस, दिस इज द वन प्लांट, दिस इज द एंथर। आप सिर्फ एंथर और स्टिग्मा ही देख लीजिए, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द अनदर प्लांट, this is the also anther. Now this one is anther, this one is anther, this one is stigma, this one is stigma. These are the two different plant. That's why as we are saying bisexual plant. तो plant number 1 जो है, हम उसका क्या करेंगे? हम उसका anther कट कर देंगे. We will cut the anther by the technique called emasculation. What is emasculation? Emasculation is nothing but the cutting of an anther of a one flower. ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एंथर और स्टिग्मा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो वी विल कट दिस एंथर बाय व्हिच स्टेप? बाय द प्रोसेस कॉल्ड emasculation. So emasculation क्या होता है? Emasculation is the process by which we are cutting the anther. अब emasculation करने के दो अलग टेक्निक है। Either you put this anther portion into the boiled water, so this portion will automatically get cut. Either you can remove it by the forceps technique. But aim is that you have to remove, or either you have to cut this anther. It will be called emasculation. अब ये anther क्या कट हो जाता है? ये एंथर कट हो जाए, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ, व्हाई वी आर कटिंग दिस एंथर। अगर हमने इस एंथर को नहीं कट किया तो इसी एंथर का पोलन ग्रेन इसके खुद के स्टिग्मा में आ जाएगा, तो खुद के कैरेक्टर खुद के अंदर ही रहेंगे। तो हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करें? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। एक प्लांट है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसका पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के अंदर जाएगा, तो हमें पोलिनेशन करने के मतलब हमें अलग नए कैरेक्टर तो मिलेंगे ही नहीं ना, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस होगी। प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पस क्या है? दो अलग प्लांट के कैरेक्टर एक प्लांट में आ जाए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इस वाले प्लांट का पोलन ग्रेन इसमें आएगा, तो ये तभी आ पाएगा ना जब हम इस पोलन ग्रेन को अवॉइड करेंगे। तो पहले हमने इसे कट कर दिया, इसे हमने कहा इमेस्कुलेशन। यस, फिर से एक बात सुन लीजिए, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इमेस्कुलेशन? द मेन पर्पस बिहाइंड प्लांट ब्रीडिंग इज टू मिक्स द कैरेक्टर ऑफ टू प्लांट एंड ब्रिंग दिस टू कैरेक्टर इनटू सिंगल प्लांट, दैट इज पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बट इफ वी डू नॉट कट द anther of a same you can say flower, then pollen grain from same anther will fall down into the stigma of same plant, same flower. So ultimately there will be unisexual character, means sorry, not unisexual character, I mean to say there will be the similar character will come, but we are interested in mixing character, so we have to cut this anther by emasculation. You can cut the anther by forceps cutting or either by boiling the this flower into the hot water, especially anther portion. Now we have to after emasculation we have to cover this stigma by either using you can cover this stigma by either using butter paper or either using polythene bag. सो ये जो इमेस्कुलेशन प्रोसेस हो जाती है, एंथर को हम कट कर देते हैं, उसके बाद हमें स्टिग्मा को कवर करना होता है आइदर बटर पेपर से या तो पॉलीथीन बैग से। अब ये क्यों करना होता है? हमने एंथर तो निकाल लिया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, लेकिन एयर में से कोई अगर पोलन ग्रेन इसमें चला जाता है तो
फिर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। और हम खुद के ऊपर ही डाउट करेंगे कि हमने क्या गलती की। लेकिन वो एटमॉस्फेयर का कोई पोलन ग्रेन उसमें चला जाए तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम पूरे एरिया को हम कवर कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले एंथर में से पोलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर करते हैं और फाइनल एक प्रोसेस करते हैं हम टैगिंग। क्या करते हैं, टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है प्लांट के आसपास हमें एक नोटिस बोर्ड लगाना होता है और उस नोटिस बोर्ड पे हमें लिखना होता है कि who is a you can say who is a person who is doing experiment, what is the date of experiment, what is timing of experiment and experiment is under what approach। तो हमें ये सब डिटेल लिखनी होती है, that will be called as a tagging। So इस वाले स्टेप में हमें 3 स्टेप ध्यान रखनी है। Emasculation means cutting of anther। It is called emasculation that you can cut by boiling the anther into the hot water or either by removing cutting it by the forceps। And second, bagging। What is bagging? After removal of anther or after cutting of anther, you have to cover the remaining portion of a stigma either by butter paper or either by polythene bag. It is called bagging। And then finally you have to go for the tagging process by which you have to tag this। So now third step is performed। Now we are going for the fourth step। First let me see how much whiteboard you can see। Yes, we have a lots of space here, so you can see this one। So I'll go for the fourth step। What is fourth step? Testing, release and commercialization of new कल्टीवार्स। अब इस स्टेप का मतलब क्या होता है कि हमने 2 प्लांट को सिलेक्ट किया और उसके बाद उनके अंदर क्रॉसिंग किया। तो क्रॉसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, पहले टेस्टिंग करना है। क्या टेस्टिंग करना है, हमें ये देखना है कि वो जो नया प्लांट आया है उस प्लांट के अंदर हाई क्वांटिटी और डिसीज रेजिस्टेंट, ये दोनों कैरेक्टर मिक्स होके आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो हमें क्या करना है, रिलीज करना है। किसको रिलीज करना है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स। कमर्शियलाइजेशन मतलब उसे मार्केट में लॉन्च करना है। कौन से प्लांट को लॉन्च करना है? न्यू प्लांट को, जिसको हमने बनाना था। कैसे बनाना था? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से हमें जो नया प्लांट बनाना था उस प्लांट को हमें पहले चेक करना है। अगर वो सक्सेसफुल रिजल्ट देता है तो हम उसे रिलीज करेंगे। कैसे रिलीज करेंगे? मार्केट में लॉन्च करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। नाउ वी हैव गॉट द न्यू प्लांट। व्हाट इज दैट न्यू प्लांट? हमारे पास एक नया प्लांट आया, हम उसे प्लांट को एक नंबर देते हैं 23। Why 23? Because we have selected plant number 2 and plant number 3rd. So we are giving a local number like a 23। हमने एक नंबर दिया, ये कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। So we have selected the plant number 2 and plant number 3rd. Then we undergo cross hybridization by emasculation, bagging and tagging. And finally we have got this plant. We have given the name of that plant as a 23. Now what we will do? We will first test it. What we will test? We will test whether this plant is having high quantity of a wheat and this is resistant property. If this plant is having high quantity and if this plant is having resistant property, if this plant have a high quantity and if this plant have a disease resistant property, अगर ये दोनों चीजें इसमें है तो टेस्टिंग इज परफेक्ट। देन वी विल रिलीज दिस प्लांट। लेकिन एक चीज ये है कि आप टेस्टिंग कैसे करोगे? आप खुद टेस्ट करोगे क्या? नहीं, आपने तो एक्सपेरिमेंट किया ना, आप टेस्ट नहीं करोगे। आप इनको सैंपल भेजोगे टेस्टिंग करने के लिए, जस्ट लाइक ICAR and IARI। व्हाट इज ICAR? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड RE, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे इंस्टीट्यूट है इंडिया के जो ऐसे प्लांट को बेसिकली एक्सपेरिमेंट तौर पे स्टडी करते हैं और वो हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताते हैं। हम जब हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमारा सैंपल उनको भेजते हैं, फिर ये सैंपल अपने
इंस्टीट्यूट में अपने रिसर्च एरिया में ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद हमें रिजल्ट एक लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू बताते हैं कि हमारा रिजल्ट सक्सेस है या फेल है। सक्सेस है तो कितना परसेंट सक्सेस है और फेल है तो क्या रीजन है उसके। तो ये सब चीजें ये इंस्टीट्यूट बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर ये वाले इंस्टीट्यूट हमें रिजल्ट सही सही देते हैं, ओके साइन देते हैं, तो फिर हम रिलीज करेंगे और कमर्शियलाइजेशन करेंगे इन सभी चीजों का। यस, और उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप करेंगे, दैट इज सिलेक्शन एंड सेल्फिंग। सिलेक्शन एंड सेल्फिंग ऑफ superior, selection and selfing of a superior recombinants। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? सिलेक्शन, किसका सिलेक्शन? इस वाले प्लांट का सिलेक्शन। सिलेक्शन एंड सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब करना, मतलब क्या? अब हम सेल्फी निकालते हैं तो हमारा जो फोटो है वो हमारे कैमरे में आ जाता है, ठीक है? तो मतलब एक से दो फोटो बन गए, क्लियर हो गया? तो सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? हम इस वाले प्लांट को, अगर हमने एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया, तो हम एक प्लांट को ही ग्रो करेंगे क्या? पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में एक ही प्लांट रहेगा? नहीं, हमें उस प्लांट की हजारों, लाखों, करोड़ों में क्वांटिटी करनी है। तो जैसे मेरे पास एक नोट्स है तो मैं उसे जेरोक्स करके सभी स्टूडेंट में बांटूंगा। सेम अगर मेरे पास ये प्लांट है तो मैं इस प्लांट का जेरोक्स करूंगा। तो जेरोक्स कैसे करेंगे? टिश्यू कल्चर टेक्निक से। So that will be called as a selfing of a superior recombinants. What is recombinants? Combination of a two plant into the new single plant, it is called recombinants। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ था? हमने किया हुआ था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो हमने अलग अलग प्रकार के प्लांट सिलेक्ट किए, फिर हमने इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया। हमने लॉजिक लगाया कि फिलहाल इस वाली सिचुएशन में इन 5 प्लांट में से कौन से 2 प्लांट सिलेक्ट करने चाहिए। तो हमने प्लांट नंबर 2 और 3 सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर ये प्लांट बाइसेक्सुअल थे तो हमने 3 स्टेप की। पहली स्टेप की इमेस्कुलेशन, जिसमें हमने एंथर को कट कर दिया, आइदर बाय बॉइलिंग द एंथर इनटू हॉट वाटर और आइदर रिमूविंग थ्रू दी फोर्सेप। एंड उसके बाद हमने स्टिग्मा को कवर कर दिया बटर पेपर या तो पॉलीथीन बैग से, जैसे हमने कहा बैगिंग। और उसके बाद हमने टैग लाइन लगा दिया, जैसे हमने कहा टैगिंग। और उसके बाद हमने जो प्लांट, नया प्लांट आया है, हमने उस प्लांट की टेस्टिंग की। और टेस्टिंग करने के लिए हमने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सैंपल भेजे। अगर वो हमें कहते हैं कि आपका प्लांट एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल है, फिर हम उस प्लांट को रिलीज कर देंगे और कमर्शियलाइजेशन कर देंगे न्यू कल्टीवर्स का। न्यू कल्टीवर मतलब नए प्लांट का मार्केट में लॉन्च कर देंगे। लेकिन उसे लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सिलेक्शन और सेल्फिंग करना पड़ेगा, उसका उसी प्लांट का बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक प्लांट में से हजारों प्लांट बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक प्लांट में से हजारों प्लांट कॉपी कर सकते हैं। और वो टॉपिक भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन स्टडी करने के बाद। सो दिस टॉपिक वाज कॉल्ड एज अ प्लांट ब्रीडिंग। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट द conventional technique by which we are mixing up, we are allowing the plant to you can say plant breeding is nothing but the conventional technique by which we are mixing the two different variety of a plant and producing a new variety of plant which is having combination character of both the selected patterns, and it's called plant breeding. When a plant is having many character, it is called many features or many character, it is called germplasm. Yes, there are 5 steps of a plant breeding, like collection of variability, in which we are showing we are selecting different variety of a plant which is having different character. Then evaluation and selection of parents, second step in which we are selecting 2 different plant among the all this variability. Then cross hybridization among the selected parents. So in this step we are doing the cross hybridization amongst these 2 selected parents. For that we are first doing emasculation, then we are doing bagging, and then we are doing tagging, and then we are going for testing of that plant sample. Then we are going testing, release and commercialization of new cultivars, and finally if the test is perfect, then we are making it many copy by the technique selecting and selection and selfing of a superior recombinant. This is most probably done by the tissue culture technique. So this is, now just imagine this plant is having 2 character, but all these plant are having single character. So this is germplasm. अगर मैं आपसे ये पूछूं इस प्लांट में हमें
हाई क्वालिटी भी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 23 नंबर का प्लांट है ना, हम इस प्लांट को किससे क्रॉस करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले से क्रॉस करेंगे, और 4 स्टेप बाकी की वही रहेगी, ठीक है। फिर हमें प्लांट नया बनेगा मिलेगा, में भी हम उसे नाम दे सकते हैं 234, यस 234, और उस वाले प्लांट में क्या कैरेक्टर होंगे, हाई क्वालिटी ऑफ हीट, हाई क्वांटिटी ऑफ हीट एंड डिसीज रेजिस्टेंट। और वैसे ही हम नया प्लांट को इस वाले से क्रॉस करेंगे और वो भी कैरेक्टर और ऐड हो जाएगा, फिर हम इससे क्रॉस करेंगे, फिर हमारे पास एक प्लांट ऐसा आएगा जिसके अंदर 5 कैरेक्टर होंगे, दैट विल बी कॉल्ड जर्मप्लाज्म। थैंक यू सो मच।